فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی نے بنوں کے علاقے میریان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر مشترکہ آپریشن کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی میں 2 اہم خوارج سرغنوں سمیت 16 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، جبکہ 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے والے دہشت گرد سرغنہ زمری نور اور افغان خوارج کمانڈر عبداللہ سعید بھی آپریشن میں مارے گئے۔ کارروائی کے دوران پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فرض کی ادائیگی کے دوران پولیس اہلکار کانسٹیبل حید اللہ خان اور نور اللہ خان نے جام شہادت نوش کیا۔ دونوں شہداء کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی، جس میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام، علاقہ عمائدین اور شہریوں نے شرکت کی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کے ہم قدم ہوگا۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین ایک عالمی اور عسکری طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے درمیان پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک 75 سالہ دوستی کا جشن منا رہے ہیں۔ ایم او یوز کو جلد معاہدوں میں تبدیل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور اب تک 30% ایم او یوز معاہدوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، جن کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو قرضوں کے بجائے مہارت اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ چین کے کاروباری افراد کو پاکستان میں سرمایہ کی دعوت دیتا ہوں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی ٹریننگ اور عالمی سرٹیفکیشن فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ تعاون کے اہم شعبے زراعت، آئی ٹی، اکنامک زونز اور مائنز اینڈ منرلز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں جو مستقبل کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ عالمی تجارت کے فروغ میں چین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور چین کے درمیان پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ شراکت داری خطے میں ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں پاکستان اور چین کی 500 کمپنیاں شریک ہیں اور اقتصادی روابط مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ حکومت کی توجہ معاشی اصلاحات، صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافے پر مرکوز ہے۔ معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے اور پاکستان ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک چین بی ٹی بی شراکت داری کا حجم 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 300 ایم او یوز طے پا چکے ہیں، جبکہ پاک چین اقتصادی تعاون کا حجم مسلسل بڑھ رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر بھی پیش رفت جاری ہے۔ اقتصادی سفارتی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون بن چکی اور پاک چین دوستی عالمی تبدیلیوں اور علاقائی چیلنجز کے باوجود ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور جلد ہماری میزبانی میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امن عمل کے لیے تمام فریقین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پائیدار امن، باہمی احترام کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر کہا کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان سمیت مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور قطر کی قیادت سے بات کی ہے۔ مصر، یو اے ای اور اردن کی قیادت سے بھی گفتگو کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کا اقدام خطے میں استحکام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی قیادت اور مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کو سراہتے ہیں۔ ان کی مسلسل شمولیت نے بامعنی پیش رفت میں مدد دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قیادت کے تعمیری کردار پر بھی شکر گزار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالیباف کو بھی سراہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریز کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام علاقائی شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے ساتھ 28 فروری سے مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر اور دیگر کے تعاون سے حتمی نتیجے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی حکومت اور فوج کی مخلصانہ کاوشیں خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान से पाकिस्तान वापसी पर उन्हें फ़ोन किया और ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना था कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और जुर्रतमंदाना मुज़ाहमत ने मुज़ाकराती अमल को तक़वियत दी। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मज़ीद कहा कि बहादुर ईरानी कौम की मुज़ाहमत ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी की पहल और मुखलिसाना कोशिशें भी इस पेशरफ्त का अहम सबब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। ईरान के साथ मुआहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। ईरान डील का ऐलान जल्द मुतवक्के है। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही। ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की गई, जबकि मुआहदे के बाद आबने हुर्मज़ भी खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद से गुफ्तगू की। अमीर कतर शेख तमीम और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी बात की है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी गुफ्तगू की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए दावा किया है कि ईरान ने अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए मुमकिना मुआहदे के तहत अपने आला दर्जे की अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर आमादगी जाहिर की है। हुक्काम के मुताबिक यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदारी की तफसीलात मुमकिना मुआहदे के बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात में तय की जाएंगी। तो दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम की जानिब से ताहाल इस दावे की तस्दीक नहीं की गई। फिर ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म का कोई बाज़ाबिता मुआहदा या वादा नहीं किया गया। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इनकलाबी गार्ड्स के बयान में कहा गया है कि ये बात काबिल जिक्र है कि ट्रंप पहले ही ये ऐलान कर चुके थे कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किसी भी मुमकिना मुआहदे की बुनियादी और लाजिम शर्त होंगे। ताहम ईरान की जानिब से कोई भी अहद नहीं किया गया और इस मरहले पर जौहरी मसला ज़ेर बहस ही नहीं आया। अमरीकी हुक्काम ने मुतअद्दिद मौक़े पर ईरान को ये भी बताया कि ट्रंप की ट्वीट्स ज़्यादातर अंदरूने मुल्क सियासी और मीडिया इस्तेमाल के लिए होती हैं, इसलिए इन बयानात को ज़्यादा अहमियत ना दी जाए। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ मुआहदा इसराइल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि अगर ईरान के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए कोई मुआहदा इस बुनियाद पर किया जाता है कि आबने हुर्मज़ को ईरानी खतरात से महफूज नहीं बनाया जा सकता और ईरान के पास तेल तंसीबात को शदीद नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रही, तो ईरान को खित्ते में एक गालिब क़ुव्वत के तौर पर देखा जाएगा। लिंडसे ग्राहम ने यह भी कहा कि ईरान का अपने हुर्मज़ पर कंट्रोल और खलीजी ममालिक को निशाना बनाने की सलाहियत ख़तरनाक है। उनका कहना था कि ऐसा मुआहदा जिसके नतीजे में ईरान मुस्तक़बिल में अपने हुर्मज़ पर अपना असर और रसूख बरकरार रखने या कंट्रोल की सलाहियत हासिल कर ले, खित्ते में ईरान की मुस्तकिल दबाव और बढ़ते हुए असर और रसूख का सबब बन सकता है। पर यह है कि वाशिंगटन में मुसल्लह शख्स ने व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर फायरिंग कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर फायरिंग करने वाला शख्स सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। मुलजिम की शनाख्त निसायर बेस्ट के नाम से की गई, जबकि ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से था। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम जहनी मसाइल का शिकार रहा था, पहले भी सीक्रेट सर्विस एहलकारों से उलझ चुका था। सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जानिब से जवाबी कार्रवाई के दौरान जख्मी होने वाला राहगीर भी चल बसा, ताहम वाक़े में कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब पेश आया। फायरिंग के सबब व्हाइट हाउस को लॉकडाउन करना पड़ा था, ताहम बाद में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में शरपसंदों ने फायरिंग करके अमन कमेटी के 4 अरकान कत्ल कर दिए। पुलिस के मुताबिक कोलाची के गांव अटल शरीफ में नामालूम अफराद ने घात लगाकर अमन कमेटी के अरकान पर फायरिंग की। 4 अरकान जाँ बहक हो गए, जबकि हुक्काम के मुताबिक इलाके में नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उधर भावलपुर के इलाके यजमान में खेतों में बकरियां
जाने पर मुल्ज़मान ने खातून को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुल्ज़मान ने बकरियां खेतों में जाने पर घर को भी आग लगाई, जिसके नतीजे में मजीद 2 घर भी आग की लपेट में आ गए। मुतासरा घरों में रखे पैसे और जेवरात भी जलकर राख हो गए। मुकदमे में बताया गया है कि मुल्ज़मान 30 बकरियां भी साथ ले गए हैं। वाक़े के मुतासरीन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फलाही इक़दाम। ज़िला अटक की तहसील फतह जंग में इज्तिमाई शादियों की तकरीब के दौरान 120 मुस्तहिक बच्चियों को रुखसत किया और ईद उल अज़हा के बाद 500 इज्तिमाई शादियों के दूसरे बड़े प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि जब उन्होंने 100 शादियों का ऐलान किया तो उस वक्त एक बच्चे की रुखसती के वसाइल भी मौजूद नहीं थे। ताहम मुखय्यर हजरात के ताउन से यह ख्वाब हकीकत में बदल गया। उन्होंने कहा कि तमाम बच्चियां उनकी अपनी बेटियों की मानिंद हैं और वसाइल की कमी के बायस कोई भी बच्ची घर नहीं बैठेगी। गवर्नर पंजाब ने चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक कामरान खाकी समेत मुआवनीन को कामयाब इनकाद पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने बताया कि ज़िले अटक में मुखय्यर हजरात के ताउन से डायलिसिस और थैलेसीमिया सेंटर कायम किया गया है, जहां मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद ऐलान किया कि तहसील झंड में जदीद जचा और बच्चा सेंटर कायम किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। हसन अब्दाल और फतह जंग से इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज भी किया जा चुका, ताकि अवाम को सस्ती सफरी सहूलियात मुहैया। सऊदी अरब ने हुज्जाज कराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफाई इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हज के दौरान मुक़द्दस तरीन मकामात की फ़ज़ाई निगरानी सख्त कर दी गई है, जबकि सऊदी वज़ारत दिफा ने दिफाई निज़ाम नस्ब करने की वीडियो भी जारी कर दी। इस हवाले से सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मस्जिदुल हराम के अतराफ मजबूत फ़ज़ाई हिसार कायम कर दिया। हज के मुक़द्दस मकामात मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात के गिर्द भी कड़ी फ़ज़ाई निगरानी की जा रही है। हुज्जाज कराम की सिक्योरिटी, सलामती और इत्मीनान यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इक़दामात किए गए हैं, जबकि सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि सऊदी फ़ज़ाई दिफाई फोर्सेस हर किस्म के फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26 मई से 29 मई तक ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा पर मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मे ईद की तातीलात होंगी। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 4 तातीलात का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक ईद कुर्बान पर मंगल 26 मई से जुम्मा 29 मई तक सरकारी तातीलात होंगी। सरकारी दफातर समेत तमाम इदारे बंद रहेंगे। मलिका कोहिसार मरी में ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान मुल्क भर से आने वाले सयाहों की मुतवक्के बड़ी तादाद के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ईद के मौके पर मरी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, ताकि ट्रैफिक और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखा जा सके। सयाहों की रहनुमाई और सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर फैसिलिटेशन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि मुतवक्के रश को मद्देनज़र रखते हुए 200 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए, जो शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मुआवनत करेंगे। मज़ीद बरा माल रोड पर फैमिलीज़ के लिए खुसूसी सहूलत फराहम करते हुए बैचलर टूरिस्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ताकि सयाह खानदानों को बेहतर और पुरसुकून माहौल मैसर आ सके। में जराइम पेशा अनासिर और मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की बड़ी कार्रवाइयाँ जारी। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस और सिंध रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार कर मुनशियात फरोशों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भारी मिकदार में मुनशियात, असलहा, नकदी और चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया है। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। थाना दरक्षा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन मनीषियात सप्लाई करने वाले मुनज़्ज़म नेटवर्क के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर वसूल करके कराची मुख्तलिफ इलाकों में बाइक राइडर के जरिए वेट और आज जैसी मनीषियात सप्लाई करते थे। इनके कब्जे से भारी मिकदार में मनीषियात नकद रकम भी बरामद हुई। बोर्ड बेस में पुलिस ने दुराने गश्त क्लिफ्टन ब्लॉक 4 के करीब कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम मुलव्विस एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब गजनी पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से मुख्तलिफ थानों से चोरी शुदा 6 मोटरसाइकिलें, 1 पिस्तौल, 4 जिंदा राउंड बरामद किए। मुल्जिमान ने तफ्तीश मुताबिक वारदातों का इतराफ भी किया। कराची के इलाके 3 अट्टी लियाकताबाद में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए मनाज फरोशी और चोरी मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से आइस, खंजर, दर्जनों मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, पावर बैंक, वीडियो कैमरा और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान मनीषियात फरोशी के 60 डकैतों के सूरतकार और लूटे गए सामान के खरीद फरोख्त में भी मुलव्विस निकले। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात मुतवक्को है।